वक्फ बोर्ड में यहाँ पर हम नुमाइंदगी करने आए, मगर बहुत अफसोस की बात है चेयरमैन साहब इतना सीरियस इशू है जो कि लोग गलीजात कब्रस्तान को की दीवार को लगाकर पेशाब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज सनत नगर में वाक़ ASI हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कोविड-19 समेत तमाम मरीजों के इलाज मुआलजे के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना भी किया और मरीजों से मुलाकात करके उनकी सेहत और इलाज मुआलजे के बारे में जानकारी हासिल की। गवर्नर ने कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों से अपील की कि वो अपना प्लाज्मा देते हुए पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की जान बचाएं। गवर्नर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने जो भी इकदाम किए वो काबिल तहसीन है। बर वक्त इकदाम और लॉकडाउन नाफिज करते हुए इस मर्ज पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की गई। So I appreciated his service. So I congratulate Santosh for your kindness. So I appreciate his role model and he has come again to donate. कोविड-19 से मुकाबला करके सेहतियाब हो जाने वाले रचाकुंडा पुलिस से वाबस्ता 39 मुलाजिमीन को आज एक तकरीब में तैनात पेश की गई। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत भी इस मौके पर मौजूद थे। उनमें एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रुतबे का अहदेदार भी शामिल है। ये तमाम आज से अपनी ड्यूटी पर रुजू बेकार भी हो गए। पुलिस बैंड ने खुश आमदीद की धुन बजाई। सेहतियाब होने वाले पुलिस वालों ने अपने तासुरात बयान किए और कहा कि काउंसलिंग से उन्हें इस मर्ज का मुकाबला करने में बड़ी मदद मिली है। कुशाईगुड़ा ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाया था कि हमारा बेहतर से बेहतर इलाज हो और वो वक्तन फ़वक्तन हमारी मिजाज पुरसी भी करते थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोविड-19 की अलामत पाए जाने पर वो फौरी डॉक्टर से मशवरा करें और अपना टेस्ट करवाएं। Of different wing, our inspectors of Mirpet DI, SIs, then we have a head constable of civil ER, then woman head constable, woman constable, civil constable, then ER constable, home guard and SPO. So all put together 31 member ఈ రోజు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ రోజు దాకా మన సంఖ్య అది 200 ఆల్రెడీ మనం దాటాం. మాత్రం అది రికవరీ రేట్ అది చాలా బాగానే ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద అడ్వైస్, వాట్ ఎవర్ అడ్వైస్ ఈజ్ గివన్ బై అవర్ డాక్టర్ అవినాష్ గారు. మన గ్రూప్లో ఇంకా ఏమేమి పెడుతున్నారు, మీకు మెడిసిన్స్ ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, అది మీరు టైంలో తీసుకొని మీ ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో దానికి రిజల్ట్గా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ 10 to 15 డేస్లో మీది పాజిటివ్ టెస్ట్ అది నెగిటివ్గా అవుతున్నాయి. సో ఈ టూ థింగ్స్ అది ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టండి. ఫస్ట్ అది ద బెస్ట్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇమ్యూనిటీ. సెకండ్, యు ఆర్ క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ. You are creator of your own destiny. మీ భవిష్యం మీ చేతిలో ఉంటుంది. తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం హ్యాపీగా ఉండడం అది చాలా మంచి. ఈ రోజు ఉంది, ఇప్పుడు కొంచెం అది ఓకే, ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చినాయి, ఈ రోజు కూడా పోతుంది, మళ్ళీ ఇంకా మంచి రోజు రావచ్చు అని ఆ ఆలోచన పిల్లలు ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఈ నెగటివ్ మైండ్లో ఏమైనా థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయితే అది ఎక్కువసేపు ఎప్పుడైనా మనం పెట్టదు. మనం వెంటిలేట్ చేయాలా, ఎవరితో అయినా మాట్లాడి చెప్పాలా, అది లెట్అవుట్ చేయాలా, దానికి వెంటిలేషన్. మన లిటరేచర్లో షేక్స్పియర్ ఆయన చాలా అప్పుడు మన బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో షేక్స్పియర్ రాసిన కొన్ని డ్రామా, కొన్ని ట్రాజడీస్, దాంట్లో ఒకటి క్యాథార్సిస్ అని ఉంది. సో
సో క్యాథార్సిస్ అంటే అది మనది ఇమోషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది మన పక్కా వెంటిలేట్ చేయాలి, చెప్పాలి ఎవరికి అని. అట్లా మనసులో మనం పెట్టద్దు. మనసులో పెడితే ఏమవుతుంది, మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ దానికి కూడా ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ కెపాసిటీ ఫుల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కష్టమవుతుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా నెగటివ్ ఆలోచన ఉన్నప్పుడు, నెగటివ్ థాట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరితో మాట్లాడండి, ఫోన్లో మాట్లాడండి, డైరెక్ట్ మాట్లాడండి, వెంట్ అవుట్ చేయండి, మర్చిపోండి, హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్. అప్పుడు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరు మీరు మంచి ఇప్పుడు ఈ రొటీన్ అన్ని ఫాలో చేశారు. ఇంకా నెక్స్ట్ 15 days కనీసం మినిమం 15 days ఈ మెడిసిన్స్ పక్కా మీరు వాడాలా. తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ అది పక్కా చేయాలా. ఏమేమి మీకు ఇప్పుడు మన అడిషనల్ సిపి గారు కూడా చెప్పారు, అది వాట్ ఎవర్ ఇస్ పాసిబుల్ టు యూ డూ దాట్. ఎక్కువ చేయొద్దు, మీకు ఏమేమి సాధ్యం ఉంది అది మీరు పక్కా మీరు చేయండి. వాకింగ్ చేయండి, రన్నింగ్ అన్నీ అవసరం లేదు, వాకింగ్ చేయండి కనీసం. అక్కడ ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు. తర్వాత ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. మీకు తెలీదు యూట్యూబ్లో చూడండి, అన్నీ ఉన్నాయి, ఛానల్స్ ఉన్నాయి యోగా సంబంధి, అది చూసుకోండి. సో మీకు మీ ప్రకృతి పరంగా మీకు ఏ సూటబుల్ ఉంది ఆ లైఫ్ స్టైల్ మీరు పక్కా ఫాలో చేయండి. మీ డయట్ ఇంపార్టెंट, डाइट मेरा। तेलंगाना में नक्सलाइट की सरगर्मियों में अचानक इजाफे के पस मंजर में डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कल बाज अजला का दौरा किया। इसमें कुमारा भीम आसिफाबाद भी शामिल है। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से माओइस्ट आदिवासी इलाकों में घूमते हुए लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि माओइस्टों की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है और इसके लिए 500 पुलिस वालों की खिदमत हासिल की जा रही है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि 5 सरगर्म माओइस्टों को, जिसकी क़यादत तेलंगाना स्टेट कमेटी के मेंबर भास्कर राव कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने मंचियाल में पुलिस की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। इस इजलास में इंस्पेक्टर जनरल नारजोन वाई नागिरेड्डी, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस विष्णु, कमिश्नर रामागुंडम वी सत्यनारायण, मंचियाल के डिप्टी कमिश्नर पुलिस उदय कुमार रेड्डी और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस YVS सुरेंद्रा भी मौजूद थे। मरकजी अंजुमन मदविया के सदारती इंतखाबात के लिए जो 16 अगस्त को मुकर्रर हैं, कौम मदविया के नौजवान आलिम दीन मौलाना सैयद महमूद शाहबुद्दीन काशिफ मियाँ ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। उन्होंने अपने मुरीदों और चाहने वालों के हमरा चंचलगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सरकर्दा शख्सियतों के बशमूल कई लोगों से रास्त राब्ता पैदा किया। उन्होंने कहा कि अब 112 साल खदीम अंजुमन मदविया की अजमत रफ्ता की बहाली और उसे एक फ़ाल कौमी इदारा बनाना वक्त की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि अंजुमन मदविया की बागडोर दयानतदार, पुरखुलूस और मिली तरक्की का जज्बा रखने वालों को ही सौंपी जाए। तकिया हजरत कबीरुद्दीन फीलखाना की दीवार से मुत्तसिल अवामी बैतुल खला बनाने JSMC के काम को रुकवाने का मुतालबा करते हुए मजलिस के सीनियर लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग की क़यादत में मजलिसी कारकुनों और मकामी अवाम ने दफ्तर वक्फ बोर्ड पर ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग और सदर खबरस्तान तकिया कबीरुद्दीन आदिल शरीफ ने बताया कि मौके में बल्दिया से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी के बावजूद हुक्काम अपने मंसूबे को रोबेमल लाने के लिए अटल हैं। उन्होंने कहा कि बैतुल खला की तामीर से सारी गंदगी खबरों में दाखिल हो जाने का खदशा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से फौरी इस मामले में मदाखलत करने की अपील की। पुलिस साहिबीन ने दफ्तर हज हाउस पहुंचकर मुजाहिरीन को अपनी हिरासत में ले लिया। 8 दिन से तकिए कबीरुद्दीन शाह जो कि बेगम बाजार फीलखाने में कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान की ज़मीन पर और उस कब्रस्तान की दीवार को लगाकर नाजायज़ के 6 चमचे वाले बाथरूम बना रहे। 8 दिन से मुसस्सिल मंजिस की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम रुका रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड में यहाँ पर हम नुमाइंदगी करने आए। मगर बहुत अफसोस की बात है, चेयरमैन साहब इतना सीरियस इशू है जो कि लोग गलीज़ात कब्रस्तान को की दीवार को लगाकर पेशाब खाना बनाकर कब्रों में पेशाब और गलीज़ चीज़ें कब्रस्तानों में जाने की वजह से आज से 2018 में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वहाँ से बाथरूम तोड़ा गया। फिर आज वहाँ पर काम चल रहा और वक्फ बोर्ड बिल्कुल खामोश है और
ऐसी नींद में चेयरमैन साहब सो रहे हैं और वक्फ बोर्ड का अमला सो रहा है। 8 दिन से आज तक जाकर कंसर्ट GHMC को और कंसर्ट PS को जाके कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से कंप्लेंट किया नहीं गया है। मैं यहाँ पर आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर, सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जब मैं यहाँ पर आया मेमोरेंडम देने के लिए, तो अफसोस की बात है चेयरमैन साहब नहीं मिलते। CO साहब से बात कर लो बोलते, CO साहब बोलते कि हमारी जगह पे नहीं है, वो हमारे मुकाम पर नहीं है बोल के ऐसा एक नाअहली की बात कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है जब आपके घर के सामने, चेयरमैन साहब के घर के सामने, चेयरमैन साहब की होटल के सामने कोई लाके बाथरूम बनाया तो चेयरमैन साहब खामोश बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। मगर यहाँ पर आले ओहदे पर बैठ के चेयरमैन साहब खाली गुंडागर्दी, दादागिरी, मैं उसको अंदर दला देता हूँ, इसको अंदर दला देता हूँ, वो मुतवली को अंदर दला देता हूँ, ये इनको अंदर दला देता हूँ बोल के खाली बयानबाजी कर रहे, मगर प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा। और ये बहुत अफसोस की बात है बीच बाजार में तेलंगाना एमसेट का इम्कान है कि आइंदा माह अगस्त में इनेकाद अमल में आएगा और इस मरतबा इम्तिहान के सेशन में इजाफा किया गया है। कोविड-19 के चलते हर सेशन के लिए तुलबा की महदूद तादाद को ही शिरकत की इजाजत दी जाएगी। इम्तिहान कबलजी बताया गया था कि 4 दिन तक जारी रहेगा, लेकिन अब नए मंसूबे के तहत इसके 8 सेशन होंगे और उसके दिनों में भी इजाफा किया जाएगा। सुबह का सेशन 9 बजे से 12 बजे दोपहर तक और शाम का सेशन 3 बजे तक 6 बजे शाम होगा। कोविड-19 का अच्छे कारोबार पर असर पड़ा है और कई बड़े इदारे बंद हो चुके हैं। वहीं स्वीडन की फर्नीचर कंपनी IKEA ने जो हैदराबाद में अपना हिंदुस्तान का पहला आउटलेट खोला था, ताला लगा दिया है। अगरचे के IKEA ने बताया कि ये तालाबंदी आरजी है, लेकिन लोगों का मानना है कि शोरूम को अवाम की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी वो तवक्को रखता था। वाज़ेह है कि 2 साल कबल बड़े धूमधाम और तमतराक के साथ हाईटेक सिटी में IKEA ने अपने आउटलेट का इफ्तिताह किया था। बंजारा के इलाके में नकबजनी की एक अजब वारदात में सारिकीन एक मशहूर बिल्डर के दफ्तर से एक रिवाल्वर और चंद कारतूस लेकर चलते बने। रोड नंबर 12 पर वाक़ई रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की शिकायत पर पुलिस बंजारा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कंपनी में लगे CCTV कैमरों से मुलजिम की निशानदेही की जा रही है। करीमनगर का केबल ब्रिज ट्रैफिक के लिए बहुत जल्द खोल दिया जाएगा क्योंकि पुल की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अप्रोचिंग रोड और अंडरपास के लिए अराजी के हुसूल का काम बाकी है। 3.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से पुल पर जबरदस्त लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने इस काम के आजिलाना तकमील के लिए रोड एंड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और कहा कि दशहरे तक इस पुल को पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। वाज़ेह है कि दिसंबर 2017 में उस वक्त के वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स टी नागेश्वर राव ने इस पुल का संग बुनियाद रखा था। तुर्की की ग्लूमार्क और टाटा प्रोजेक्ट्स ने 181 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज किया था। 500 मीटर तवील केबल ब्रिज, कमान से पुल को आने वाली 4 लाइन की सड़क और पुल की दूसरी जानिब सदाशिवपल्ली को LED लैंपों से सजाया जा रहा है। सदाशिवपल्ली रोड को मनाकंदूर रोड से जोड़ने के बाद वरंगल और करीमनगर के माबैन 7 किलोमीटर की मसाफत कम हो जाएगी। गवर्नमेंट व्हिप कर्नल प्रभाकर ने कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये दोनों जमातें कोविड-19 से मुकाबला करने, रियासती हुकूमत से ताउन करने के बजाय नुक्ताचीनी और तनकीदों को अपना शिवा बना चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नल प्रभाकर राव ने कहा कि कांग्रेस दवाखाने उस्मानिया से लेकर कालेश्वरम तक हर प्रोजेक्ट और तरीक़ाती मंसूबे की मुखालिफत की है और अब दवाखाना उस्मानिया को लेकर एक हंगामा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60 साल हुक्मरानी में कोई खास काम अंजाम नहीं दिए और अब उल्टा हुकूमत से सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अच्छे काम करती तो 2014 में उसे शिकिस्त का मुंह देखना नहीं पड़ता था। ఈ సెక్రటేరియట్ పరిపాలన సౌలభ్యంగా లేదు అనేటువంటి మాట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు। దాంట్లో భాగంగానే మరి సెక్రటేరియట్ ని పునర్నిర్మించుకోవాలి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి వసతులు అరకుర వసతులు, దానికి తోడు ప్రతి నెల 32 కోట్ల రూపాయలు కొత్తది సచివాలయం నిర్మిస్తే 32 కోట్ల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా ప్రజల ముందు ఉంచినాం। ఇవాళ సెక్రటేరియట్ నడుస్తున్నటువంటి పద్ధతి చూస్తే మంత్రి గారి ఛాంబర్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది, సెక్రటరీ గారి ఛాంబరు మరొక దగ్గర ఉంటుంది, ఎక్కడో అమీర్పేటలో ఉంటుంది,
వారి కమిషనర్ గారి ఛాంబరు అక్కడెక్కడో మలక్పేటలో ఉంటది. ఈ విధంగా ఇష్టం వచ్చిన స్థలాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అద్దె గదుల్లో ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్ ఇవాళ ఒకే దగ్గర ఉండడం ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటది. తద్వారా పరిపాలన ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటది అనేటువంటిది అందరికీ అందుబాటులో ఉండడం ద్వారా ఎటువంటి మరి పనులకు ఆలస్యం జరగకుండా పనులు చకచకా జరుగుతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవాళ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూనుకున్నది. అదే కాదు, దాని కనీసం పార్కింగ్ స్థలాలు, కనీసం జర్నలిస్టులు కూర్చోవడానికి కూడా ఒక హాల్ కూడా లేనటువంటిది, కనీసం ఒక క్యాంటీన్ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి, క్యాంటీన్ కూడా డేరాల కింద నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం అనేటువంటిది అనివార్యమని అర్థమైనటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం మరి కొత్త సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుడితే దురదృష్టవశాత్తు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరి ఇప్పటికే దాదాపు సగం కంప్లీట్ అవుతుండే. గత సంవత్సరం శంకుస్థాపన జరిగింది, ఇవాళ సగం కంప్లీట్ అవుతుండే. దాదాపు సంవత్సర కాలం కోర్టుల్లో కేసులేసి రాక్షసానందం పొంది వికృత చర్యలకు పాల్పడింది వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ. रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज खम्मम और वरंगल के मुश्तरका टीआरएस पार्टी ऑफिस के तामीर के काम का मुआयना किया और उसकी आजलाना तकमील पर जोर दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि टीआरएस तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर अपने पार्टी दफातर की शानदार इमारतें तामीर करवा रही है। उन्हें बताया कि टीआरएस ने अपने तंजीमी ढांचे को वसत दी है और उसके अरकान अब हर जिला, मंडल और गाँव में पाए जाते हैं। चुनाचे पार्टी कारकुनों से बाहमी राब्ते और पार्टी के प्रोपेगेंडे को आम करने के लिए अच्छे और अच्छे दफातर तामीर किए जा रहे हैं। रियासती एडमिनिस्ट्रेशन को साफ और शफाफ बनाने के मकसद से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया। इसको अब सेक्रेटरीट के 1600 से ज्यादा मुलाजिमीन इस्तेमाल करेंगे ताकि पेंडिंग फाइलों की आजलाना यकसुई हो सके। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन और कई आला अहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने कापरा सर्कल में मल्लापुर जंक्शन की तामीर जदीद का इफ्तिताह किया। इस जंक्शन को खूबसूरत बनाने के काम पर 27 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव शहर को खूबसूरत बनाने के काम को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स पी देवेंद्र रेड्डी, के एंजయ్య, पवन रेड्डी, जी सरस्वती, एम अन्नाला रेड्डी, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। बादशाह मेयर ने मल्लापुर में हिंदू शमशान घाट की तामीर के काम का भी मुआयना किया। सहबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनान ने कोविड-19 से सेहतियाब होने वालों से कहा कि वो पॉजिटिव मरीजों की मदद के लिए आगे आएं और अपना प्लाज्मा दें। उन्होंने बताया कि सहबराबाद पुलिस से वाबस्ता 3 मुलाजिमीन ऐसे काम के लिए आगे आए। अगर किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो वो पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करें, पुलिस उन्हें उनके घर से लेकर जाएगी। ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పీడిస్తున్న కోవిడ్-19 బారి నుంచి చాలా మంది పబ్లిక్ రికవరీ కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా నేను నా తరఫు నుంచి సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. తీవ్రంగా బాధపడుతూ చాలా మంది అడ్మిట్ అవుతున్నారు. ఈ కరోనా వైరస్ రోగ నిరోధక శక్తి పైన చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎవరు ఆ బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఒక రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఎవరెవరు కోవిడ్-19 బారి నుంచి బయటపడినారో ముందు వచ్చి ప్లాజ్మా ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న 500 ml ప్లాజ్మా 2 పేషెంట్స్ కి సరిపోతుంది. మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ప్లాజ్మా 24 గంటల నుంచి 72 గంటల లోపల మళ్ళీ మీ దగ్గర ఫార్మ్ అవుతుంది. బ్లడ్ డొనేషన్ చేసినట్లు ఉంటుంది. అందరూ కూడా తెలుసు. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా మంది ఆఫీసర్స్ కరోనా వ్యాధికి ఎఫెక్ట్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళు మన దగ్గర పనిచేస్తున్న మన ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసు, కానిస్టేబుల్ వీరశేఖరు, కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ ముందు వచ్చి ప్లాజ్మా ఇవ్వడంతో ముగ్గురిని ఆదుకోగలిగారు. ముగ్గురు ఫ్యామిలీస్ ని వాళ్ళు ఆదుకోగలిగారు. ప్లాజ్మా ఇవ్వాలని ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు మా సైబరాబాద్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 9490617440 కు ఫోన్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ ఎక్కడ ఉన్నారు మీ దగ్గర ఉన్న మనమే వెహికల్ పంపించి తీసుకెళ్లి సేఫ్ గా సురక్షితంగా మీకు ఇంటికి కూడా డ్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దయచేసి ఈ ఒక రోగం నుంచి బయటపడినారు వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చి ప్లాజ్మా ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज उस्मानगंज में नाले की तामीर के जारी काम का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर नालों पर तामीरात करने वालों के साथ साथ नालों में कचरा और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ बल्दिया सख्त कार्रवाई करेगी। खातियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। वाज़ेह है कि उस्मानगंज की नाले की तामीर की खातिर मुजम्जाया मार्केट से सिलंबर बाजार जाने वाली 2 रुखी रोड गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद कर दी गई है।
ఈ నాలా ఓపెన్ నాలా అనేటువంటిది మనకు ఇక్కడ కార్వాన్ ప్రాంతం నుంచి ఆ నాలా మరి బస్తీల వారీగా ఈ వైపున వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఉస్మాన్ గారి నుంచి మళ్ళీ మూసేపల్లి కలిసినటువంటి నాలా ఇది. ఎవ్రీ టైం రెయినీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి. అయితే దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ మరి రోడ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్లకు ఒక 2,25,00,000 శాంక్షన్ చేయడం మూలాన ఈ వర్క్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే కొంత కోఆర్డినేషన్ కోసం ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. కొంత హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ కానీ, సేమ్ టైం సిహెచ్ఎంసీ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. అయితే ఈ ప్రాంతంలో ఏంటంటే నాలాస్ మీద కూడా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ నాలాస్ మీద ఉన్నటువంటి ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇది ప్రాపర్గా మనకి ఇంకో 1.5 month కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లో అనేది చాలా ఈజీ మూవ్మెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమర్షియల్ కానీ బస్తీ వాళ్ళు ఈ మార్కెట్ ఎవరు కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ చేయడానికి ఇది ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉస్మాన్ గంజ్ మార్కెట్ వాళ్ళందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ప్రజల ఇబ్బందులను దూరం చేయడానికి మనం ఈ కార్యక్రమం. రెండోది టెక్నాలజీ కూడా స్పాన్సీల్ గెటర్ అనేటువంటి ఒక టెక్నాలజీ అంటే మనకి స్లాబ్ దీని హైటు ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఓకే ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈరోజు మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు కొత్త టెక్నాలజీతో చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటారు. మీకు ముషిరాబాదు ఇందిరా పార్క్ టువర్డ్స్ క్రాస్ రోడ్ కానీ ఆ ప్రాంతంలో స్టీల్ ప్లేట్లు కానివ్వండి, మొన్న పంజగుంట దగ్గర చూసారు అది కూడా స్టీల్ ప్లేట్లు. అంటే ఓవైపున ఫ్లైఓవర్స్ కానివ్వండి, సేమ్ టైం రోడ్స్ కానివ్వండి మరి ఈ విధంగా చేసుకోకపోవడం. ఇప్పుడు హిస్టారికల్ हेरिटेज भोजंजा मार्केट बचपने से सब लोग देखते मगर आज तक उसके ऊपर नज़र भी कोई भी नहीं करे। तो हमारे वो यूथ को हमारे डायनामिक मिनिस्टर केटीआर साहब ने कायदे मजलिस मकराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने जो अवैसी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं दवाखाने का दौरा किया और वहां कोविड-19 के मरीजों के लिए कायम किए गए वार्ड्स का मुआयना किया। इस दवाखाने में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ 75 बिस्तर फराहम किए गए जबकि 20 बिस्तरों के साथ वेंटिलेटर नस्ब किया गया है। इस मौके पर उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी और दवाखाने के दूसरे डॉक्टर्स भी मौजूद थे। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज निजामाबाद की बॉक्सर निकस जरीन को जिसने कई रियासती और कौमी चैंपियनशिप मुकाबलों में हिस्सा लिया तहनीत पेश की और एक कंपनी की तरफ से पेश करदा 5 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। इस मौके पर सदर नशीन रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश्वर रेड्डी और निकस जरीन के वालिद जमील साहब भी मौजूद थे। తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో జన్మించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి తన తండ్రి ప్రోత్సాహంతో కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పట్టుదలతో ఒక మంచి పేరు తేవాలి, నా జిల్లాకు నా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పేరు తేవాలని చెప్పి ఇలా నిఖత్ జరీన్ గారు ప్రపంచంలోనే 21st ర్యాంక్ సాధించి బాక్సింగ్లో భారతదేశానికి గొప్ప పేరు తెచ్చి భారతదేశంలో ఎక్కడుంది ఏమంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొప్ప పేరు తేవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గతంలో కేటీఆర్ గారు కూడా మా మున్సిపల్ మినిస్టర్ యువ నాయకుడు కేటీఆర్ గారు కూడా వీరితో మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు క్రీడలను ప్రోత్సహించాలనే దిశలో క్రీడారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, యువతకు మంచిగా దిశానిర్దేశాన్ని ఇవ్వాలి, చిన్నప్పటి నుంచే ఆటల పట్ల ఆరోగ్యం పట్ల ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలగాలని చెప్పి ఒక సబ్ కమిటీని కూడా నియమించి ఒక క్రీడా పాలసీని కూడా తయారు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఏ రాష్ట్రంలో లేనిది ఈ రాష్ట్రంలో 2% రిజర్వేషన్ ఉద్యోగాల్లో, 0.5% ఎడ్యుకేషన్లో, ఇంకా అనేక రాయితీలు, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్స్లో గెలిచినటువంటి వాళ్ళకు నగదు రకరకాల ప్రోత్సాహాలు ఇచ్చి మరి ఈ 6 సంవత్సరాల వ్యవధిలో చేయడం జరిగింది. భవిష్యత్ తెలంగాణలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులన్నీ కంప్లీట్ అయితే భవిష్యత్ తెలంగాణలో క్రీడలకు ఇంకా గొప్ప ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిఖత్ జరీన్ లాంటి వాళ్ళకు ఇంకా గొప్ప అవకాశాలు వస్తాయి.
ఈమె ఎంతో పట్టుదల గల వ్యక్తి, ఎంతో మండి ధైర్యంతో మరి ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మెరికోమ్ కూడా అంటే ఆమె వరల్డ్లో 3 వరల్డ్లో నెంబర్ 3 ర్యాంకును కూడా ఈమె ఓడించి మరి గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఆమె. ఖచ్చితంగా మా ప్రభుత్వం గొప్ప సహకారం ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నాట్కో కంపెనీ నుంచి 5 lakhs రూపీస్ సహాయం చేయడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ కరోనా ఇవన్నీ కొద్దిగా అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కేటీఆర్ గారికి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారికి పూర్తిగా వివరించి మా ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఈమెకు ఖచ్చితంగా ఆమెకు సంతోషపడేటట్లు మా ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ తెలిస్తే చూసి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఒక మంచి అవకాశాన్ని మా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఆమెకు మా సహాయ సహకారాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయని చెప్పని ఈమెను ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా స్వశక్తితో ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందడానికి మరి ఈమెను ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధైర్యంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి ఆటల పట్ల కూడా మంచి ఇంట్రెస్ట్ కలిగేటట్టు చేయాలని చెప్పి మరొకసారి నిఖిల్ గారిని మరి వారి యొక్క కుటుంబాలను సభ్యులను మరి యొక్క ముఖ్యంగా వారి తండ్రి గారిని మరియు మా వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ గారిని మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మా ఆలం వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని మిత్రులు శాసనసభ్యులు గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మీకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తాను. रियासत असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज मुआवजे को आरोग्यश्री के दायरे कार में शामिल करने का मुतालबा किया। मदीरा में अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखबार वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों में 50% बिस्तर कोविड-19 के मरीजों के लिए मुख्तस किए जाने चाहिए। निज डॉक्टरों, नर्सों समेत तिब्बी अमले को जो कोरोना वायरस से फौत हो जाते हैं 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दिया जाए। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कोविड-19 की दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के नाम समीर फार्मेसी आसिफ नगर का मोहम्मद उबैद, मोहम्मद आफाक अली, मोहम्मद माजिद अली, अब्दुल अजीज जो ओलिव हॉस्पिटल में काम करता था, बी राजू, सुनील और एम रवि बताए गए। पुलिस के मुताबिक अब्दुल अजीज इन सब के साथ मिलकर 5400 रुपये मालियत के इंजेक्शन जो कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं 19,000 रुपये में फरोख्त कर रहा था। इस तरह मरीजों और परेशान हाल लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा था। इंस्पेक्टर जी मल्लू और उनकी टीम ने धावा करते हुए इन सब को गिरफ्तार कर लिया। जहानुमा के मजलिसी कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा की निगरानी में आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 की टेस्टिंग का कैंप मुनक्किद किया गया, जहां मुकामी लोगों ने अपना टेस्ट करवाया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। याद रहे कि सदर मजलिस बैरिस्टर ज़ुनैसी MP ने 3 दिन कबल तमाम कॉर्पोरेटरों को अपने अपने डिवीजन में ऐसे कैंप मुनक्किद करने की हिदायत दी थी। साहब की हिदायत पर और MLA साहब की तवज्जो से जहानुमा डिवीज़न में MP साहब ने ख़ास तौर पे ऐलान किया था कि जो भी है टेस्ट कराइए बोल के, हर कॉर्पोरेटर अपने अपने एरिया में टेस्टिंग कराना बोल के। आज जहानुमा डिवीज़न में जहानुमा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मैं और मेरे साथी सदर मुतमदीन आज टेस्ट कराए। अभी रिपोर्ट नहीं आई, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि नेगेटिव रिपोर्ट आएंगी। मेरे साथ 10 सदर मौजूद है और ये सिलसिला हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। MP साहब हर एरिया में फिर के टेस्टिंग कराना बोल के बोल रहे हैं। आज हम पहला दिन था हमारा, यहाँ से कंटिन्यू जितना टारगेट MP साहब बोले वो टारगेट को पूरा मुकम्मल करेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोग को पॉजिटिव आया, कुछ दिनों से करा रहे तो थोड़े दिन पहले कुछ लोगों को पॉजिटिव आया, अल्लाह उनको भी सेहत से नवाजे बोल के हम दुआ करते हैं। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक नॉर्मली टेस्ट है ये। आप लोग जितने भी लोग हैं घर से निकलिए, इंशाल्लाह ताला कोई बड़ा कुछ टेस्टिंग का नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लाना है, यहाँ पर लाके नाम लिखाना है। उसके बाद एक मिनट के अंदर आपका टेस्ट होता है, फिर एक घंटे के अंदर आपको मैसेज आता है, दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को बोलिए टेस्ट कराइए। अगर टेस्ट निकला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द इलाज हो जा रहा है। लोग डर के इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, डर के इसको नहीं करा रहे हैं। मगर इसका अगर डर निकालना है तो आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है। और टेस्ट कराए बाद नेगेटिव आ गया तो आपको भी भरोसा था, आपकी फैमिली को भी, सबको, क्योंकि हर आदमी बाहर फिर रहा है। अचानक एक पॉजिटिव आने से एक फैमिली डिस्टर्ब हो जा रही है। तो उससे पहले अगर अपने को मालूम हो गया
ये फर्स्ट स्टेज है अगर तो आपको हमको इलाज कराने में सहूलत होती है। अगर बाद में अगर ज़्यादा अगर आप मुब्तला हुए इस केस में तो आपको, आपकी फैमिली को, अड़ोस पड़ोस को, सबको नुकसान होता है। तो मैं ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग आइए। हर जगह इसके दवाखानों में टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसा कि नाब साहब कुंटे में भी हमारे एमएलए साहब ख़ास तौर पे बोल के एक सेंटर फिर स्टार्ट कराए है, वहाँ भी टेस्टिंग चल रही है, जानुमा में भी चल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली को सेव करना है तो आप एक बार टेस्ट कराइए। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के केसों में इजाफे से परेशान रियासती हुकूमत ने जिला गुंटूर के नरसरावपेट टाउन में कल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। नरसरावपेट के रुकन असम्बली जी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिन से कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे के पस मंजर में ये सख्त इकदाम उठाना पड़ा। ये लॉकडाउन 10 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि टाउन में 200 बिस्तरों वाला एक नया दवाखाना अनकरीब कायम किया जाएगा। रियासत में कोविड-19 के अब तक जुमला 38,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बताया कि रियासत के हर जिले में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर्स में 5,000 बिस्तरों का इंतजाम किया जाएगा। कोविड-19 की टास्क फोर्स कमेटी के सदस्य एमटी कृष्णा बाबू ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के लिए पूरी रियासत में 46,198 बिस्तर फराहम किए गए। अजला, मगरबी गोदावरी, मशरकी गोदावरी और चित्तूर में 5,000 की गुंजाइश भी अब नाकाफी हो रही है। मशहूर तिरुपति मंदिर के एक सीनियर पुजारी में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एक अहदेदार ने बताया कि 11 जुलाई को आवाम के दर्शन के लिए मंदिर को खोलने के बाद से अब तक 14 पुजारी कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं और उनमें 63 साल ये सीनियर पुजारी भी शामिल हैं। देवस्थानम के 140 मुलाजिमीन अब तक कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं। बीजेपी ने राजस्थान में फोन टैपिंग तनाज़े की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में जो मामला है वो 2 ग्रुपों में कशमकश का नतीजा है। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के माबैन 2018 से रशाकशी चल रही है। इसके लिए बीजेपी को किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संबित पात्रा ने मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम गैर जरूरी इस पूरे तनाज़े में घसीटने पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि शेखावत और कांग्रेस के रुकन असम्बली भंवरलाल शर्मा के दरमियान बातचीत का फोन टैपिंग किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर रियासती हुकूमत फोन टैपिंग की मुर्तकिब पाई जाती है और इस मामले की गहरी तहकीकात की जानी चाहिए। संजय जी बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत धन्यवाद। एक कम नोटिस में आप लोग आज यहाँ हाजिर हुए हैं। बंधुगण, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। द पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान इज अनफोल्डिंग एवरी सेकेंड। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलेज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथा कथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे। राजस्थान में कांग्रेस आई कि अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अब पूरी तरह बेनकाब हो गई है। पार्टी के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि संबित पात्रा ने खरीदो फरोख्त का इतराफ किया है, मगर उल्टा हुकूमत से सवाल कर रही है कि फोन टैपिंग क्यों की गई। पवन खेरा ने कहा कि हरियाणा की हुकूमत राजस्थान की पुलिस की तहकीकात में रुकावटें खड़ा कर रही है। राजस्थान के तहकीकाती अहदेदारों को मनीसर के होटल में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगी। वो चाहते थे कि वहां मुक़य्यद कांग्रेस अरकान असेंबली से पूछताछ की जाए। So we are live on all platforms. Okay. नमस्कार साथियों, आपको शनिवार की शुभकामनाएं। हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू।
राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों का जो भाजपा का खुला खेल है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार जग जाहिर हो रहा है, परत दर परत जग जाहिर हो रहा है। आज भाजपा ने अपनी प्रेस वार्ता में स्वीकार कर लिया कि खरीद फरोख्त तो हुई, लोकतंत्र की हत्या भी हुई, संविधान को कुचला भी गया, रौंदा भी गया। उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब यह सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, और कोई शिकायत नहीं। सिर्फ इस बात की शिकायत है कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, क्या रिकॉर्डिंग कानूनी थी। यानी कि चोर मान रहा है कि उसने चोरी की, वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि जब वो चोरी कर रहा था तो जो कैमरे लगे थे क्या वो कानूनी रूप से लगे थे। यह तो अजीब सी बात हुई कि हत्या का आरोपी ये कहे कि जब वो हत्या कर रहा था, जिस गवाह ने उसे हत्या करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया, क्या वो गवाह हत्यारे की निजता को भंग तो नहीं कर रहा था। केरला में मुत्तहिदा अरब इमारात के कॉन्सुलेट में तैनात एक गनमैन की तरफ से खुदकुशी की कोशिश पर मजिस्ट्रेट ने दवाखाना पहुंचकर उसका बयान कलमबंद किया। केरला गोल्ड स्मगलिंग केस में नाम आने पर अपने साथियों की हिरासनी से तंग आकर जय घोष ने कल खुदकुशी की कोशिश की थी। जय घोष तिरुवनंतपुरम में अपने मकान के करीब खून में लुथपुथ पाया गया। वाज़ेह है कि एनआईए डिप्लोमेटिक बैगेज में 14 करोड़ 82 लाख रुपए माल्य थी 30 किलो सोने की स्मगलिंग के मामले की तहकीकात कर रहा है। इसमें चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के लोगों का भी नाम मंजर-ए-आम पर आया है। उत्तर प्रदेश में जारी जंगल राज की एक मिसाल मथुरा में देखी गई, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास में बीजेपी के खातून कॉर्पोरेटर दीपिका रानी सिंह ने म्युनिसिपल कमिश्नर को तमाचा मार दिया। इस वाकये से इजलास में मौजूद अरकान और अहदेदारों में खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेटरों और अरकान असेंबली की तरफ से ऐसी बेहूदगियों और गुंडागर्दी के वाकयात कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,884 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोविड-19 के जुमला मरीजों की तादाद 10,38,716 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 671 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी अब बढ़कर 26,273 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र इस मुहल्लिक वबा से बुरी तरह मुतासिर है, जहां मुतासरीन की जुमला तादाद 2,92,598 और मरने वालों की तादाद 11,452 बताई जाती है। तमिलनाडु में 1,60,907 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,315 अफराद फौत हो चुके हैं। मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली में 3,571 अफराद फौत हुए हैं और मरीजों की तादाद 1,20,107 तक जा पहुंची है। इसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 17 जुलाई तक पूरे मुल्क में 1,34,33,742 अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कल सिर्फ एक दिन में 3,61,000 टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद अब 1,40,00,000 के निशाने को पार कर चुकी है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो कि 6,01,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना है कि मरीजों और अमवात के एतबार से अमेरिका पूरी दुनिया में सर फहरिस्त है, जहां 36,41,417 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं तो 1,39,171 अफराद फौत हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की तादाद 20,46,328 है और मरने वालों की तादाद 77,851 तक जा पहुंची है। जिन ममालिक में 10,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं उनमें बरतानिया, मेक्सिको, इटली, फ्रांस, स्पेन, हिंदुस्तान, ईरान, पेरू, नीदरलैंड और रूस शामिल है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में
अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप